رات کے پچھلے پہر کا سناٹا تھا۔ شہر کی گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اندھیروں میں لپٹا ایک گھر ماتم کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک جنازہ صحن کے بیچ رکھا تھا۔ وہ شخص جو کل تک اس گھر کا سہارا تھا، آج خاموش، بے حس و حرکت پڑا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نہ آواز تھی، بس ایک جامد سا سکوت، اندر سے جیسے کوئی چیز ٹوٹ کر گر چکی تھی۔ اس کی 7 سالہ بیٹی ہانیہ باپ کے چہرے پر رکھ کے کپڑے کو، امی ابو اٹھیں گے نا؟ وہ مجھے اسکول چھوڑنے جائیں گے نا؟ مگر فاطمہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا، صرف ایک ٹوٹی ہوئی ماں کا دل تھا جو اپنی بچی کو سینے سے لگا کر خاموشی سے روتا رہا۔ جنازہ اٹھا، سب لوگ گئے، مگر کچھ ہی دنوں میں تعزیت کرنے والوں کے قدم بھی کم ہونے لگے۔ فاطمہ کے سسرال والوں کی آنکھوں سے ہمدردی کا پردہ ہٹنے لگا۔ جہاں کل تک وہ بیوہ بیٹی تھی، اب وہ ان کے لیے ایک بوجھ بننے لگی۔ ایک شام جب وہ چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو ساس کا سخت لہجہ کانوں میں پڑا۔ فاطمہ، ہم تم دونوں کو اب زیادہ نہیں رکھ سکتے، ہمارا خرچہ پہلے ہی بہت ہے، تمہارے ماں باپ بھی نہیں، تمہیں خود سوچنا ہوگا کہاں جانا ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ سے لکڑیاں زمین پر گر پڑی۔ اماں، میں کہاں جاؤں؟ میری ساتھ ایک چھوٹی بچی ہے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری نہیں۔ گھر کے دروازے پر رکھے 2 کپڑوں کے چھوٹے بیگ اس بات کا اعلان تھے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فاطمہ نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، اب ہم کہاں جائیں؟ شام ڈھلتے ڈھلتے وہ دونوں شہر کی بڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھیں۔ لوگ گزرتے دیکھتے، مگر کسی کے قدم ٹھہرنے کا نام نہ لیتے۔ اسی لمحے دور سے سفید گاڑی آ کر رکی جس پر لکھا تھا ایدی فاؤنڈیشن۔ ایک مہربان چہرے والی عورت نے گاڑی سے اتر کر پوچھا، بیٹی کہاں جانا ہے؟ فاطمہ کے ضبط کے بند ٹوٹ گئے۔ کہیں بھی جہاں میرے بچے کو پناہ مل جائے۔ اگلے لمحے وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں۔ گاڑی شہر کی خاموش سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایڈی سینٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فاطمہ کی زندگی کے پہلے دروازے بند ہوئے اور ایک نیا دروازہ دکھوں کی دیواروں کے پیچھے آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ ایک ایسے سفر کا دروازہ جو اسے اور اس کی بچی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی تک لے جانے والا تھا۔ ایڈی سینٹر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی فاطمہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی اجنبی مگر پرسکون دنیا میں آ گئی ہو۔ دیواروں پر لگی تصویریں، بچوں کی آوازیں، نرسوں کی مصروفیت، سب کچھ نیا تھا، مگر پہلی بار دل میں ایک ہلکی سی آس جاگی کہ شاید اب کوئی جگہ انہیں ٹھکرا نہیں دے گی۔ ہانیہ نے ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتی رہی۔ ایک مہربان سٹاف ممبر نے مسکراتے ہوئے انہیں اندر لے جا کر بٹھایا۔ آپ گھبرائیں نہیں، یہاں سب آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی ہیں۔ اس ایک جملے میں ایسی شفقت تھی کہ فاطمہ کا دل بھر آیا۔ اس رات انہیں سینٹر کے خواتین وارڈ میں ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا۔ چھت ٹپکتی نہ تھی، کھڑکی بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں کوئی انہیں بوجھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اگلی صبح فاطمہ نے ہانیہ کو جگایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا، ہم یہاں کچھ دن رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں امی بھی کام کریں گی اور تم بھی پڑھو گی۔ ہانیہ نے معصومیت سے پوچھا۔ امی، یہاں سے ابو ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ فاطمہ نے گہری سانس لی، بیٹی کے ماتھے پر چوم کر صرف اتنا کہا، اللہ سب کی مدد کرتا ہے، ہمیں بھی کرے گا۔ اسی دن سینٹر کی انچارج ذکیہ آپا نے فاطمہ سے ملاقات کی۔ تمہیں کام کی ضرورت ہے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں سلائی جانتی ہوں، تھوڑا بہت پڑھ بھی سکتی ہوں۔ ذکیہ آپا نے فہرست دیکھی۔ ہمیں ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو سینٹر کے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کرے۔ تنخواہ کم ہے مگر رہائش اور کھانا مفت ہوگا۔ فاطمہ نے بغیر سوچے قبول کر لیا۔ اسی رات پہلی بار اسے لگا کہ وہ خود کے لیے نہیں بلکہ ہانیہ کے بھولے سے مستقبل کے لیے جی رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ فاطمہ دن بھر سینٹر کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی، دوائیاں دیتی، کھانا کھلاتی اور رات کو سلائی مشین پر کپڑے سی کر کچھ اضافی پیسے کما لیتی۔ دوسری طرف ہانیہ سینٹر کے اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ اپنی آنکھوں میں چمک تھی اور ہر روز کچھ نیا سیکھنے کا شوق۔ ایک روز ہانیہ دوڑتی ہوئی آئی، امی، آج میں نے کلاس میں سب سے اچھی ریڈنگ کی، ٹیچر نے مجھے اسٹار دیا ہے۔ فاطمہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔
मेरी बच्ची, यही शौक कभी तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। एडी सेंटर की जिंदगी मुश्किल ज़रूर थी, मगर बेरहम नहीं। यहाँ कोई उन्हें धक्के नहीं देता था, कोई उंगली नहीं उठाता था। ये वो जगह थी जहाँ फातिमा ने पहली बार दुखों में छुपी हुई उम्मीद की खुशबू महसूस की। दिन गुजरने के साथ साथ फातिमा के हाथों की महारत बढ़ती गई और हानिया के जहन में इल्म के दरवाजे वसी होते गए। ये दोनों माँ बेटी अब जिंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार थीं और किस्मत अभी उन्हें एक नए मोड़ पर लाने वाली थी। एडी सेंटर में गुजरते हुए महीनों ने फातिमा और हानिया की जिंदगी को एक नई तरतीब दे दी थी। फातिमा सुबह से शाम तक काम करती, फिर रात गए तक सिलाई करती और हानिया स्कूल में हमेशा पहली सफ़ में बैठकर पढ़ती। जिंदगी अगरचे सख्त थी, मगर पहली बार इन दोनों के कदम ज़मीन पर मजबूती से जमने लगे थे। एक नई सुबह, एक नई खुशी। एक दिन हानिया स्कूल से वापस आई तो उसके हाथ में एक रंगीन पेपर था। अम्मी, अम्मी देखें, मैंने तकरीरी मुकाबला जीत लिया। फातिमा ने हैरानी और खुशी से बेटी को देखा। तकरीर? किस मौजू पर? हानिया ने नन्ही सी संजीदगी से जवाब दिया। उस्ताद ने कहा कि बताओ हिम्मत क्या होती है। तो मैंने कहा, हिम्मत वो होती है जो मेरी अम्मी के दिल में है। ये सुनकर फातिमा का दिल भर आया। इस लम्हे उसे यूं लगा जैसे सातों आसमानों से रहमत नाजिल हो रही हो। हानिया की कामयाबी महज इनाम नहीं थी, ये फातिमा की मेहनत का पहला फल था, जिंदगी का पहला बड़ा फैसला। एक दिन ज़किया आपा ने फातिमा को दफ्तर बुलाया। फातिमा, सेंटर में एक नई जॉब ओपन हुई है। हमें किसी ऐसी खातून की ज़रूरत है जो बच्चों को बुनियादी तालीम भी दे सके और सेंटर की इंतज़ामी फाइलों में मदद भी करे। तनख्वाह भी अच्छी है। फातिमा ने हैरत से पूछा, मगर आपा, मैं क्या ये सब कर पाऊंगी? ज़किया आपा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी, जो औरत दुख सह सकती है वो दुनिया की हर जिम्मेदारी उठा सकती है। तुम करोगी, यकीन रखो। ये वो लम्हा था जब फातिमा ने बरसों बाद पहली बार खुद पर भरोसा किया। उसने फैसला किया कि वो डरेगी नहीं। अब पीछे हटने की जगह नहीं थी। एक नया इम्तिहान, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। चंद ही हफ्तों बाद हानिया की तबीयत बिगड़ने लगी। वो बार बार थक जाती, खांसती और बुखार रहता। फातिमा उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे और बोले, टेस्ट के बाद बताएंगे क्या मसला है, मगर एहतियात ज़रूरी है। हानिया के चेहरे पर कमज़ोरी थी, मगर होंठों पर मुस्कुराहट। अम्मी, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मुझे कल स्कूल भी जाना है। फातिमा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, अल्लाह के हुक्म से सब अच्छा होगा। इसी रात फातिमा पूरी रात जागती रही। कभी बेटी की सांस चेक करती, कभी दुआ मांगती, कभी आने वाले कल का सोचकर डर जाती। उसे यूं लग रहा था जैसे किस्मत उसे परख रही हो कि क्या वो वाकई मजबूत है, क्या वो हजारों मुश्किलों के बावजूद अपनी बेटी को पढ़ाने और जिंदगी देने के काबिल है। उम्मीद की किरण। अगले दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, फिक्र की बात नहीं, ये कमजोरी और विटामिन की कमी है। दवाएं दें, ग़िज़ा बेहतर रखें और बेटी को आराम करवाएं, वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर फातिमा की जान में जान आई। वो शुक्र के आंसू रोके न रोक सकी। हानिया ने माँ के गले में बांहें डाल दी। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? खुशी के आंसू हैं मेरी जान। अल्लाह ने फिर हमें एक मौका दिया है। ये मौका, ये जिंदगी, ये उम्मीद, यही वो रोशनी थी जो आगे चलकर हानिया को इस मुल्क की सबसे मजबूत और कामयाब औरत बनाने वाली थी। हानिया की सेहत बेहतर होने लगी तो फातिमा के दिल में एक नई तवानाई जाग उठी। अब वो पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ सेंटर में काम करती, अपना वक्त मुनज़्ज़म करती और सिलाई के साथ साथ पढ़ाई भी दोबारा शुरू करने का फ़ैसला कर चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि तालीम के बग़ैर आगे का सफ़र मुश्किल है, और अगर वो चाहती है कि हानिया ज़िंदगी में बहुत ऊंचा उड़े तो उसे खुद भी बेहतर बनना होगा। फातिमा की तरक्की। सेंटर में नई जॉब का आगाज़ उसकी ज़िंदगी का पहला मोड़ था। अब वो बच्चों को बुनियादी तालीम देती, फ़ाइलें संभालती, डॉक्यूमेंट्स तैयार करती और हर चीज़ जिम्मेदारी से अंजाम देती। चंद हफ्तों में ही ज़किया आपा ने उसकी काबिलियत तस्लीम कर ली। फातिमा, तुमने उम्मीद से ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम में लगन है और यही तुम्हें आगे ले जाएगी। ये अल्फाज फातिमा की ज़िंदगी के टूटे हौसलों को जोड़ने लगे। हानिया की बढ़ती जहानत।
ادھر ہانیہ بھی غیر معمولی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کے استاد اکثر فاطمہ سے کہتے، آپ کی بیٹی عام بچی نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی توجہ، اس کی میموری سب کمال ہے، اسے آگے بہت پڑھائیں۔ ہانیہ اب روزانہ کتاب ہاتھ میں لے کر فاطمہ کے پاس بیٹھتی، امی جب میں بڑی ہو جاؤں تو بہت ساری عورتوں کو پڑھاؤں گی، آکے کوئی ماں آپ جیسا دکھ نہ دیکھے۔ فاطمہ اپنی بچی کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں روتی۔ یہ رونا کمزوری کا نہیں تھا، بلکہ وہ خوشی تھی جو صرف ماں کے دل میں سماتی ہے۔ زندگی کو بدلنے والا واقعہ۔ ایک شام جب فاطمہ بچوں کو سونے کے لیے لٹا رہی تھی، سینٹر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ایک بڑی فلاحی تنظیم کی ٹیم سینٹر کا معائنہ کرنے آئی تھی۔ اس دن تمام خواتین اور سٹاف اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے۔ فاطمہ کی باری آئی تو اس نے نہایت اعتماد کے ساتھ بچوں کی فہرستیں، رپورٹس اور تعلیمی رپورٹ پیش کیا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، آپ نے یہ سب خود تیار کیا ہے؟ جی سر، میں کوشش کرتی ہوں کہ کام بہترین ہو۔ سربراہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر کہا، آپ میں صلاحیت ہے، کیا آپ ہماری تنظیم کے ایک خاص پروگرام میں شامل ہونا چاہیں گی؟ یہ تربیتی پروگرام ہے جس میں آپ کو انتظامی اور تعلیمی مہارتیں سکھائی جائیں گی۔ بعد میں آپ کو بہتر عہدہ بھی مل سکتا ہے۔ فاطمہ چند لمحے خاموش رہی۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک طرف کام، دوسری طرف ہانیہ کی ذمہ داری۔ مگر پھر اسے اپنی بیٹی کا کہا ہوا جملہ یاد آیا، امی دنیا میں آگے وہی بڑھتے ہیں جو ڈرتے نہیں۔ فاطمہ نے ہانیہ کو اپنی گود میں لے کر فیصلہ کر لیا، میں شامل ہونا چاہتی ہوں سر، ایک نئی سمت، ایک نیا سفر۔ اس دن فاطمہ کو لگا کہ قسمت پہلی بار اس کی مدد کرنے لگی ہے۔ یہ فیصلہ آگے چل کر اس کی اور ہانیہ کی زندگی بدلنے والا تھا، ایک ایسا دروازہ کھلنے والا تھا جو انہیں غربت، لاچاری اور تنہائی سے نکال کر کامیابی کے سفر پر لے جانے والا تھا۔ فاطمہ کے لیے وہ تربیتی پروگرام صرف ایک کورس نہیں تھا، یہ اس کی زندگی کا دروازہ تھا جو برسوں کے دکھوں کے بعد پہلی بار امید کی روشنی میں کھل رہا تھا۔ پہلا دن، نیا ماحول۔ پروگرام شہر کے ایک بڑے ادارے میں شروع ہوا۔ فاطمہ نے جب شیشہ دار عمارت میں قدم رکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خود کو اس نے کئی بار سنبھالا، فاطمہ ڈرنا نہیں، تم نے مشکل وقت دیکھے ہیں، یہ تو صرف سیکھنے کا سفر ہے۔ کمرے میں مختلف شہروں سے آئی ہوئی کئی خواتین تھیں، سب اپنے اپنے خوابوں کے ساتھ۔ ٹرینر نے جب فاطمہ کی محنت دیکھنے کے بعد اسے سراہا تو اس کا اعتماد مزید مضبوط ہو گیا۔ وہ ہر لیکچر، ہر نوٹ اور ہر سیشن پوری توجہ سے کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ دوسروں کے لیے مثال بننے لگی۔ ہانیہ کا پہلا بڑا امتحان۔ ادھر ہانیہ بھی اپنے تعلیمی سفر میں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے اسکول میں ایک بین الاضلاع مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا۔ موضوع تھا تعلیم سے بدلتی دنیا۔ ہانیہ نے تقریر لکھنے کے لیے اپنی امی سے مدد مانگی۔ امی، میں کیا لکھوں؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جو تم نے ہماری زندگی میں دیکھا ہے وہ لکھ دو۔ دکھوں کو شکست دے کر آگے بڑھنے کا سفر، وہ سب جو تم روز دیکھتی ہو۔ ہانیہ نے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دنیا کے درد اور امید کو الفاظ میں ڈھالا۔ ٹیچرز اس کی تحریر سے حیران رہ گئے۔ بچی کی سوچ اس کی عمر سے کئی گنا بڑی تھی۔ دوڑتا وقت اور بڑھتے امتحانات۔ فاطمہ صبح پروگرام جاتی، دوپہر سینٹر کا کام، شام کو ہانیہ کی پڑھائی اور رات گئے سلائی۔ یہ زندگی آسان نہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہی خوف نہیں تھا جو زمانے کی ٹھوکروں نے پیدا کیا تھا۔ ایک رات جب وہ تھک کر بیٹھی تھی، ہانیہ اس کے پاس آ کر بولی، امی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ ہاں میری جان۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ میں ایک دن بہت بڑی لیڈر بنوں گی، کیا میں بن سکتی ہوں؟ فاطمہ نے اسے گلے لگا لیا۔ ہانیہ، تم وہ بن سکتی ہو جس کا خواب بھی لوگ نہ دیکھ سکیں، بس سیکھتی رہو، بڑھتی رہو، رکنا نہیں۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، آمی، میں اسکول نہیں، ایک بڑا ادارہ بناؤں گی جس میں غریب بچوں کو مفت پڑھایا جائے گا اور ہم جیسے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ فاطمہ کے دل میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ یہ وہی خواب تھا جس کے لیے وہ ہر دن جدوجہد کر رہی تھی۔ خوشخبری، چند ہفتوں بعد فاطمہ کو پروگرام مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ ملا، لیکن اصل خوشخبری کچھ اور تھی۔ وہ تنظیم اسے مستقل طور پر
अपने दफ्तर में बेहतर तनख्वाह के साथ रखना चाहती थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर शामिल हों। फातिमा चौंक गई। ये वो मकाम था जिसका उसने कभी तस्वुर भी ना किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू कमजोरी नहीं, शक्र के थे। एक नई सुबह की शुरुआत। इस नई जाब ने न सिर्फ फातिमा की जिंदगी बदली, बल्कि हानिया के मुस्तकबल के रास्ते भी रोशन कर दिए। अब माँ बेटी का सफर और मजबूत कदमों पर आगे बढ़ने लगा था। या वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर एक ऐसा उदारा खड़ा होना था जो हजारों बच्चों की जिंदगी बदल देगा। और इस उदारे की बानी होगी वही हानिया जिसे कभी ससुराल ने रात के अंधेरे में मां समीत घर से निकाल दिया था। फातिमा अब एक आम वर्कर नहीं रही थी। उसे पहली बार वो इज्जत, वो मकाम और वो शनाख्त मिल रही थी जिसका ख्वाब उसने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। नई जॉब, नई जिम्मेदारियां और सबसे बढ़कर नए ख्वाब। दफ्तर में पहला दिन असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर फातिमा ने जब अपने नए दफ्तर में कदम रखा तो दिल में एक अजीब सी लर्जिश थी। कमरा साफ सुथरा, मेज पर सजी फाइलें, एक छोटा सा कंप्यूटर और दरवाजे पर उसके नाम की तख्ती, फातिमा सलीम, असिस्टेंट मैनेजर। वो तख्ती देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। ये उस औरत की कामयाबी का ऐलान थी जिसे कभी घर से धक्के देकर निकाल दिया गया था। सीनियर अफसर ने उसका खैर कदम करते हुए कहा, फातिमा, तुम्हारा काम हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट को मजबूत बनाना है। हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये अल्फाज फातिमा की कुव्वत बन गए। इधर हानिया की पहली बड़ी जीत, बैनुल अज़लाई तकरीरी मुकाबले का दिन आ गया। हानिया के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। स्टेज पर माइक के सामने खड़ी होकर उसने गहरी सांस ली और अपनी तकरीर शुरू की। तालीम वो रोशनी है जो एक कमजोर इंसान को मजबूत बनाती है, जो एक लावारिस बच्ची को मुल्क की खिदमत के काबिल बनाती है और जो एक टूटी मां को फिर से जिंदा कर देती है। पूरा हाल खामोश था। इसकी आवाज में मासूमियत भी थी और जिंदगी का दर्द भी। नतायज का ऐलान हुआ तो हानिया पहली पोजीशन की हकदार करार दी गई। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। जब वो सर्टिफिकेट लेकर अपनी मां की तरफ दौड़ी तो फातिमा ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तुम सिर्फ मेरी उम्मीद नहीं, तुम इस दुनिया की उम्मीद बनोगी। एक लम्हा जो जिंदगी का रुख बदल दे। एक दिन फातिमा दफ्तर में नई तालीमी स्कीम की फाइल तैयार कर रही थी कि एक मेहरबान चेहरे वाली बड़ी अफसर खातून ने उसे बुलाया। फातिमा, मैं तुम्हें काफी वक्त से देख रही हूं। तुम मेहनती भी हो और विजन भी रखती हो। फातिमा ने झिझकते हुए पूछा, जी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, एक खास वजह से। खातून ने उसकी तरफ 3 सफ़हात बढ़ाए। हम एक नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए टीम बना रहे हैं। अच्छी तनख्वाह, बेहतर सहूलतें, मगर सबसे बढ़कर ये तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम हो सकता है। फातिमा ने लरजती हुई आवाज में पूछा, मैं? क्या वाकई मैं इसके काबिल हूं? अफसर ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, तुम सिर्फ काबिल नहीं, तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की दुनिया बदल सकते हैं। वो लम्हा फातिमा के लिए तकदीर की नई लकीर था। उसने कागज पकड़े, दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं तैयार हूं। एक नई सिमत का आगाज। इस प्रोजेक्ट के साथ फातिमा की आमदनी बेहतर हुई, घर के लिए बचत होने लगी। 2023 हानिया अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल और बेहतर माहौल में आगे बढ़ने लगी। अब मुश्किलात पांव की जंजीर नहीं रही थी, बल्कि कदमों की ताकत बन रही थी। फातिमा ने दुनिया को दिखा दिया था कि ताकत औरत के ससुराल, खानदान या पैसे में नहीं, उसके अंदर होती है। और हानिया, वो आगे बढ़ रही थी उस मकाम की तरफ जहां एक दिन वो मुल्क की सबसे बड़ी और कामयाब तरीन तालीमी शख्सियत बनने वाली थी। जिंदगी अब फातिमा और हानिया के लिए सिर्फ गुजारने का नाम नहीं रही थी। ये एक मकसद, एक सफर और एक ख्वाब बन चुकी थी। फातिमा की तरक्की और नई जिम्मेदारियां जहां घर में सुकून ला रही थी, वहीं हानिया का नए स्कूल में दाखिला इस कहानी का एक नया आगाज था। हानिया का नया स्कूल, नई दुनिया। फातिमा ने हानिया को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया। स्कूल का माहौल, असातिज़ा की तवज्जो और जदीद तालीम का मेयार, सब कुछ हानिया के लिए बिल्कुल नया था। पहले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी आंखों में खौफ भी था और अज़्म भी। बच्चे नए, क्लासरूम नया, जबान और पढ़ाई दोनों मुश्किल।
मगर हानिया ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उस्ताद ने जब पहली बार उससे सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हानिया ने धीमे लहजे में कहा, हानिया, हानिया फातिमा। उस्ताद ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? हानिया के जवाब ने पूरी क्लास को हैरान कर दिया। मैं इल्म देने वाली बनना चाहती हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े ख्वाब। उस्ताद ने इसकी हिम्मत को सराहा और यहीं से हानिया का सफर नुमायां होने लगा। इम्तियाजी जहानत का एतराफ चंद हफ्तों के अंदर ही हानिया ने हैरान कर दिया। इसकी पढ़ने की रफ्तार, समझबूझ और मजबूत याददाश्त देखकर टीचर्स ने उसे स्कूल की टैलेंटेड स्टूडेंट्स लिस्ट में शामिल कर लिया। एक दिन प्रिंसिपल ने फातिमा को बुलवाया। आपकी बेटी गैर मामूली है। हम चाहेंगे कि वो स्कूल के स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बने। यहाँ इसे खुसूसी तरबियत और इजाफी क्लासेस मिलेंगी। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वो दिन था जिसका ख्वाब वो हर रात आंखें बंद करके देखती थी। हानिया जब माँ के पास आई तो उसने पूछा, अम्मी, क्या मैं वाकई खास हूं? फातिमा ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी जान, तुम बहुत खास हो। तुम वो रोशनी हो जो एक दिन हजारों जिंदगियां बदल देगी। फातिमा के सामने एक बड़ा फैसला उधर। फातिमा के दफ्तर में भी नई सूरत हाल पैदा हो गई थी। जिस बड़े प्रोजेक्ट में वो काम कर रही थी, उसके लिए अब एक टीम लीडर की जरूरत थी। इंतजामिया ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए और उनमें से एक फातिमा का भी था। फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके सामने 2 रास्ते थे। 1, ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा मसरूफियत। 2, हानिया के साथ ज्यादा वक्त और सादा जिंदगी। जकिया आपा ने उसे फोन किया। फातिमा, फैसला मुश्किल जरूर है, मगर याद रखो, मजबूत माँ हमेशा मजबूत बेटी बनाती है। अगर तुम आगे बढ़ोगी तो हानिया भी आगे बढ़ेगी। फातिमा पूरी रात जागती रही। वो खिड़की के पास बैठी शहर की रोशनियां देखती रही। दुनिया कितनी वसी है और उसमें उसकी बच्ची ने एक दिन बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है। बिलाखिर उसने फैसला कर लिया। वो डरेगी नहीं, वो पीछे नहीं हटेगी। एक नई सुबह, एक नया ऐलान। अगली सुबह जब वो दफ्तर पहुंची तो सब लोग नताइज का इंतजार कर रहे थे और चंद मिनट बाद ऐलान हुआ, इस प्रोजेक्ट की नई टीम लीडर होंगी फातिमा सलीम। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। फातिमा खड़ी रही, आंखें नम, हाथ लरसते। ये वो लम्हा था जिसने उसके माजी के सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। और शाम को जब हानिया ने उसे गले लगाया तो फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हानिया, अब हमारा सफर सिर्फ बेहतर नहीं, बहुत बड़ा होने वाला है। हानिया ने जवाब दिया, अम्मी, हम दोनों मिलकर दुनिया बदलेंगे। शहर की सड़कें उस दिन कुछ अजीब सी खामोश थी, जैसे हवा ने भी सांस रोक रखी हो। रेहान जब घर वापस आया तो उसके कदमों में वही भारीपन था जो हर हसास इंसान को तब महसूस होता है जब वो मुआशरे की बेहसी का तमाशा देखकर लौटता है। वो कुर्सी पर बैठते ही गहरी सांस लेकर आंखें मूंद लेता है। उसके जहन में दिन भर के मनाजिर घूम रहे थे। कूड़ा फेंकती हुई औरत, सड़क पर थूकने वाला नौजवान, इशारे पर बिला वजह हारन बजाता ड्राइवर, और फिर वो बूढ़ा जिसने बेबसी से कहा था, पुत्र, हमने भी कभी ख्वाब देखे थे कि ये मुल्क सुधरेगा, मगर शायद लोगों ने बदलना ही नहीं। रेहान ने आंखें खोली, कलम उठाया और अपने सामने रखी सफेद शीट पर लिखना शुरू किया। मुआशरे की बर्बादी कभी बाहर से नहीं आती, हमेशा अंदर से पैदा होती है। कानून कमजोर हो जाए तब भी कौम जिंदा रह सकती है, लेकिन जब अखलाक मर जाए सब कुछ दफन हो जाता है। उसने लिखते हुए सोचा कि असल मसला ये नहीं कि लोग गलतियां करते हैं, असल मसला ये है कि उन्हें अपनी गलती गलत लगती ही नहीं। जैसे गंदगी फैलाना कोई गुनाह नहीं, जैसे बदतमीजी कोई बुराई नहीं, जैसे इज्तिमाई शऊर की मौत सिर्फ एक आम सी बात हो। खिड़की से बाहर झांका तो गली में चंद बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा दूसरों से कह रहा था, ओए, जो कुछ 2023 हाथ आए इधर ही फेंक दो, कौन सा हमने उठाना है। रेहान के दिल पर चोट पड़ी। बच्चे तो वालदैन का अक्स होते हैं, और अगर आईना ही धुंधला हो तो तस्वीर कैसी होगी। रेगमाली हवा खिड़की से टकराई तो रेहान ने आहिस्ता से कहा, इसी नस्ल को बचाना होगा। उन्हें बताना होगा कि सड़कें सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि तहजीब का मेयार भी होती हैं। उन्हें समझाना होगा कि कौमें जूतों की आवाज से नहीं, किरदार की आवाज से पहचानी जाती हैं। कलम रखते हुए उसने दिल में अहद किया
कि वो ये सिलसिला अधूरा नहीं छोड़ेगा। इसे ये पैगाम हर दिल तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर एक भी इंसान का शऊर जाग गया तो शायद मुआशरे का सफर तारीकी से रोशनी की तरफ एक कदम और बढ़ जाए। रात का पिछला पहर था। शहर की सड़कों पर अंधेरा गहरा था, मगर रेहान के जहन में एक अजीब सी रोशनी जाग रही थी, जैसे जमीर ने उससे कहा हो कि लिखते रहो, शायद यही लफ्ज कभी किसी दिल को बदल दें। वो बैल्कुनी में खड़ा शहर को देख रहा था। दूर कहीं एक गाड़ी तेजी से गुजरी, कचरा उड़ाता हुआ। एक लम्हे को उसे लगा कि उस शोर, उस बेतरतीबी, उस बदहाली में भी शायद कोई खामोश फरियाद छुपी है। फरियाद एक ऐसे मुआशरे की जिसे बचाने वाला कोई नहीं। अचानक नीचे गली में एक झगड़ा सुनाई दिया। दो नौजवान चीख रहे थे, मुझे क्या, मैं अपनी मर्जी करूंगा। तो फिर मुझे भी हक है, जो दिल चाहे करूं। रेहान ने सर झुका लिया। यही तो सबसे बड़ा जख्म था, इनफिरादी आज़ादी को इज्तिमाई बर्बादी समझने की बीमारी। हर शख्स अपनी अना, अपनी सहूलत, अपनी जिद को हक कहकर पेश करता है, मगर किसी को यह ख्याल नहीं आता कि हक वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे का हक शुरू होता है। इसी लम्हे गली के कोने से एक बूढ़ा खाकरूब आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाता गुजरा। उसके चेहरे पर थकन भी थी और खामोश वकार भी। कोई उसे सलाम नहीं करता, कोई उसकी इज्जत नहीं करता, मगर वो रोजाना सुबह शहर की गंदगी अपने हाथों से साफ करता है, और लोग इसी शहर को शाम होते ही फिर गंदा कर देते हैं। वो मंजर रेहान के दिल में तीर की तरह लगा। असल हीरो यही लोग हैं, उसने दिल में सोचा, लेकिन हमने उन्हें वो मकाम कभी दिया ही नहीं जिसके वो हकदार हैं। हमें उन जैसे किरदार की जरूरत है, लालच के नहीं, शऊर के। वो वापस मेज पर आया, बैठा और आहिस्ता से लिखा, कौमें बुलंद इमारतों से नहीं बनती, बल्कि उन हाथों से बनती हैं जो खामोशी से अपना फर्ज निभाते हैं, और उन दिलों से जो अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। कलम रखते हुए रेहान ने महसूस किया कि शायद ये जद्दोजहद आसान नहीं, लेकिन अगर आवाज दब जाए तो सोच भी मर जाती है, और वो ये मरने नहीं देना चाहता था। उसने खिड़की से बाहर आखिरी नजर डाली और जेरे लब कहा, बदलाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, हमें ही बनना होगा मिसाल, हमें ही शुरू करना होगा पहला कदम। आखिरी वक्त के गिरदाब में साल यूं गुजर गए जैसे किसी ने पलक झपकाई हो। नायाब अब वो कमजोर बेआसरा बच्ची नहीं रही थी, वो मुल्क की सबसे बावकार, मोतबर और बाहिमत खवातीन में शुमार होने लगी थी। इसका इदारा, उम्मीद फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, अब एक तहरीक बन चुका था। हजारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों असातिज़ा, जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज, फ्री स्कॉलरशिप्स, और हर दीवार पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ, गम जिंदगी का इख्तिताम नहीं, आगाज है अगर तुम लड़ने का हौसला रखते हो। एक शाम नायाब ने अपनी माँ को ऑफिस बुलाया। वही ईदी सेंटर में पनाह लेने वाली माँ, जिसने कभी सबके ताने बर्दाश्त किए, कभी भूख बर्दाश्त की, कभी सर्दी बर्दाश्त की, मगर अपनी बेटी को पढ़ाने का हौसला नहीं छोड़ा। माँ जब इदारे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो पूरे स्टाफ ने खड़े होकर तालियां बजाएं। कुछ ने टिश्यू से आंखें साफ की, क्योंकि ये सिर्फ एक माँ नहीं थी, ये कुर्बानी, साबित कदमी और औरत की खामोश अजमत का मुजस्सम रूप थी। नायाब आगे बढ़ी, माँ के हाथ थामकर बोली, अम्मी, ये सब जो आप देख रही हैं, ये मेरी नहीं, आपकी कामयाबी है। आपने मुझे दुख नहीं सिखाया था, आपने मुझे जीना सिखाया था। माँ की आंखें बरसने लगी, मेरी बेटी, मेरी कामयाबी, मेरी मेहनत की ताबीर। नायाब ने एक बड़े हॉल में माँ को ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। हॉल हजारों तलबा और तालिबात से भरा हुआ था। सबके सामने उसने माइक पकड़ा और कहा, आज मैं एक राज बताना चाहती हूं। मैं यतीम नहीं थी, मगर यतीमों जैसा सलूक मेरे साथ हुआ। मैं अकेली नहीं थी, मगर मुझे तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन मेरे पास एक औरत थी जिसकी हिम्मत ने मुझे बचाया। वो औरत मेरी माँ है, जिसने दुखों को शिकस्त दी और मुझे सिखाया कि ये दुनिया कभी रुकने वालों के लिए नहीं बनी। ये दुनिया उनके लिए है जो डगमगाते हैं मगर गिरते नहीं, धोखा खाते हैं मगर रुकते नहीं, और दर्द सहते हैं मगर हारते नहीं। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, आंसू, दुआएं, सब एक साथ बहने लगे। माँ ने हाथ उठाए और बेटी को गले लगा लिया। नायाब ने धीमे लहजे में उसके कान में कहा, अम्मी, हम जीत गए। और यूं एक बेवा की जद्दोजहद, एक बच्ची की मेहनत,
ایک ماں کی قربانی اور ایک عورت کی جنگ، سب نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ زندگی کبھی رکنے نہیں دیتی، بس انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔